चलिए नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का. लास्ट वीडियो में वी हैव गॉट 54 questions and the rest on we will cover in this video. The question is, the Indus Valley civilization people worshipped which god? Shiva, Indra, Varuna, Brahma, Vishnu. Shiva. And how they confirm why Shiva? Because the seals from while excavation we found. So on that seal we found the Pashupati. It was the lord of animals. Pashupati animals we found on the seal. So from that we assume that because he's a Hindu god Shiva, so we assumed they worshipped Lord Shiva. Apart from that, three-faced male god is shown sitting in Pashupati scene, sitting in a yogic posture surrounded by the animals like rhino, buffalo, elephant, tigers. So these evidences confirm that in this valley civilization people worshipped Shiva. What? Shiva. Next question, question 57. Who was the director of archaeological excavation that led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro? Sir John Marshall. Who was that? Sir John Marshall was the director of archaeological excavation who led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro. Sir John Marshall. Remember it. Next question. Two Indians who were associated with discovery of Indus Valley civilization are Rakhal Das Banerjee and Dayaram Saini. These are the two Indians who were associated with the discovery of Indus Valley civilization, Rakhal Das Banerjee and Dayaram Saini. These are very prominent figures associating with Indian archaeologists. Next question, question number 59. Which of the is not correctly matched? So basically they are saying who discovered these sites. Harappa discovered by Dayaram Saini, already mentioned in our last series. Lothal was excavated by S.R. Rao. Surkotara was excavated by J.P. Joshi. If you are not able to remember JPSR, so just remember Rao. Lothal इस तरीके से याद कर सकते हैं. LSR कॉलेज है ना, तो लोथल और राव इस तरीके से याद कर सकते हो. L से लोथल, R से राव. तो राव डिस्कवर दिस लोथल साइट. हड़प्पा का तो याद हो जाएगा, दयाराम सहनी जी है. सुरकोतरा का जोशी. धोलावीरा, इसमें धोलावीरा का गलत है because Dholavira was excavated by R.S. Beast, who excavated the site. R.S. Beast याद रखिए आप, ठीक है. BDDB कुछ भी करके याद कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है. हड़प्पा दयाराम सैनी, लोथल राव, अल साहब, धोलावीरा BD इस तरीके से याद कर लिए. DB या BD और बिस्ट जी ने. इसका एक्रोनिम ऐसे जोशी रहने दीजिए, आप थोड़ा ऐसे जूम कर लीजिए. ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म 2-4 बार ऐसे आप यू विल गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, यू विल एबल टू. अगर आप 2-3 बार आपने ये वीडियो सुन ली तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी चीज़ें. फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुडंट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस. कहने का मतलब ये है कि वो कौन पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पा तो एक्सकेवेट किया बट उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला. ही कुडंट गेट दैट रिकॉग्निशन, इसका सिग्निफिकेंस. ही कुडंट रिकॉग्नाइज इट. सॉरी, I will correct my words, but he was the first archaeologist who excavated Harappa, but he didn't recognize its significance. कितना significant है कि ये एक टाउन प्लानिंग था एक टाइम पे, ये एक civilization था. He excavated, but he didn't realize its significance. He was Alexander Cunning.
He was Alexander Cunning, who was also the archaeological, who also headed the archaeological survey of India. So he was the one who couldn't recognize significance. Next question. Question 61. Who among the following was not associated with the excavation of Harappa and Mohenjo-daro? कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन एक ऐसे फिगर है जो who was not associated with the हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक्सकेवेशन में, वो है वी स्मिथ। देखो ये भी नहीं हो सकते, ये भी पढ़े हैं अब इन दो में। एक्सप्लेनेशन पढ़ते दयाराम सैनी, सबको आपने भी पढ़ा, वो एक्सकेवेटेड हड़प्पा। एमएस Watts was associated with the excavation of Harappa. He was also associated with the Harappa excavation. Mohenjo-daro excavation was done by the Rakhildas Banerjee. Harappa, Mohenjo-daro. Harappa, Dayaram Sahni. And Watts. Mohenjo-daro was done by Rakhildas Banerjee. And these both are the prominent figures of Indian history of archaeologists. In addition to these, there are definitely other archaeologists as well. So V. Smith was not associated with the discovery of Harappa. Rather, ये एक Irish historian थे. He was a historian. V. Smith was historian. He was not historian थे. V. Smith. He was not archaeologist. V. Smith was historian. बाकी आप थोड़ा सा ये भी नजर में मान लीजिए कि बाकी अदर और जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे कौन कौन थे, के एन दीक्षित थे, अर्नेस्ट मैके थे, ऑरेल स्टीन थे, घोष थे, जेपी जोशी थे। थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ कहीं पे अगर फंसाने की कोशिश करें तो आपको याद रहेगी कि हाँ ये तो आर्कियोलॉजिस्ट थे। Who among the following discoveries report site? Who discovered? किसने सुरकोतरा साइट, जैसे कि अभी मैंने आपको हड़प्पा दिखाया, हु डिस्कवर मोहनजोदारो मैंने कौन डिस्कवर, तो इसको हु डिस्कवर जगपति जोशी। सुरकोतरा was discovered by Jagapati Joshi. Next question, question number 63. From which one of the following places remains of wells have been found in the houses belong to the developed stage of Indus Valley civilization? एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेबल था, इसलिए इसका कोई एक आंसर नहीं है, क्योंकि जो नेम्स हैं वेल्स के, दे हैव बीन फाउंड ऑलमोस्ट एवरी मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा ABCD करके, वो ऐसे लिखेगा कि A B, सेकेंड ऑप्शन लिख देगा, फिर B C D, थर्ड में कुछ लिख देगा, फोर्थ में लिख देगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव लिख देगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, so remains of wells have been found almost every city, major city of the civilization. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of करेक्ट क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है कि पहले गोल्ड कॉइन्स आए या फिर आयरन आए या फिर क्या आया या फिर अर्बन कल्चर। देखिए अभी बता देते हैं। गोल्ड कॉइन सबको पता है, गोल्ड कॉइन आपको मैं थोड़ा ये दिखा देती हूँ। कुशानाज Indo-Greek, he was the first who gold coins, but in Indo-Greek rulers. Gold coins were introduced by Indo-Greek rulers in the 2nd century. Okay,
पंचमार्क कॉइन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया 716 BC। सबको पता है आयरन जो है वैदिक पीरियड में आया, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ आयरन एंड अर्बन जो टाउन प्लानिंग है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से आया है। तो उस हिसाब से जो फर्स्ट पे आ रहा है अर्बन कल्चर, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक, उसके बाद पंचमार्क सिल्वर कॉइन आया 17 BC, गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक। ओके, D is the correct answer. Question 65. The first metal used by the man was copper. Which metal? Copper. याद रखना है, भूलना नहीं है। कभी कंफ्यूज हो जाओ, सिल्वर मैम पढ़ाया था मैम ने हमें, नहीं सिल्वर भी यूज हुआ है वो राजस्थान की माइन से। That was not the first metal used by the copper was the first metal. And ivory scale in Harappan कहाँ मिली थी? Ivory scale in Harappan context was found at Lothal। ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा ना, माइंड में हल्का सा देखो ना। ivory scale कहाँ मिली? लोथल, LIC ऐसा करके याद कर लीजिए, LIC और इसको एक मान लीजिए थोड़ा, ठीक है ना। लोथल, ivory scale। Question 62. Which metal has so far not been discovered in Harappan site? देखिए सब आयरन को छोड़ के सारे मेटल मिले हैं, क्योंकि ये तो वैदिक पीरियड से आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। Question 68. Which one among the following sites is located in the valley of Ghaggar? ये बनावली, ठीक है ना, बनावली लोकेटेड। इसकी ट्रिब्यूटरीज डेफिनेटली राजस्थान तक गई हुई है, ठीक है ना, बट बनावली हरियाणा में है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये इट इज ऑन घग्गर रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ घग्गर विल फाइंड इन राजस्थान एज वेल, ठीक है ना। So we'll find the mention of this river in Rajasthan as well. Banavli is on Ghaggar. Next, consider the following statement and select the correct answer from the given cause. Mohenjo-daro, Harappa, Ropar, Kalibangan are the main sites of Indus Valley civilization. Absolutely correct. People of Harappa developed the road, proper housing, drainage system. Absolutely correct. Next, people of Harappa were known about the use of metal. Were unknown, definitely. बोला है कि वो उनको लोगों को नहीं पता था कि मेटल यूज होता है। क्यों नहीं पता था? they knew copper, they knew the silver। आयरन को छोड़ के उन्हें मेजर मेटल्स पता थे, ठीक है। ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। Mohenjo-daro and Harappa cities are dead now? Yeah, true. They were discovered during excavation in the context, okay। देखिए इसमें क्या है ना, ये भी सही है, they are dead now, they were discovered during excavation, but this is not the correct explanation, this reason is not the correct explanation of assertion, okay। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों वो डेड है। अगर क्लाइमेटिक रीजन देते, कुछ अलग रीजन देते तो हाँ हो सकता था कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, बट इन दिस केस आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, from where the evidence of rock cut architecture was found with reference to Harappan civilization। देखिए जो रॉक कट आर्किटेक्चर के जो एविडेंस फाउंड किए गए ना हरप्पन सिविलाइजेशन, वो धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा इज द सेकंड लार्जेस्ट हरप्पन साइट। जो लार्जेस्ट थी वो कौन सी थी? कौन सी थी? राखीगढ़ी, याद करा मैंने, आर 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 आर
मूवी थी, बहुत सुपर हिट हुई। आर 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 चुना 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 आर आर से क्या बना, राखी गरी की। दिस वॉज द लार्जेस्ट साइट थी ना। सेकेंड लार्जेस्ट धोलावीरा। धोलावीरा सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर राखी गरी। देखो हाउ इज बेस्ट एक्सकेवेटेड दिस साइट। साथ में हल्का सा एक बार और रिवाइज कर लीजिए। हु डिस्कवर्ड दिस साइट? बेस्ट बीडी। याद करा था ना फिर, बेस्ट बीडी। डी से धोलावीरा, बी से बेस्ट बीडी। नेक्स्ट, Dholavira is one of the most prominent archaeological sites of Harappa which gives information about the Great Bath. बिल्कुल, धोलावीरा में ग्रेट बाथ है, रॉक कट रिजर्वॉयर है। क्या है? रॉक कट रिजर्वॉयर। यहाँ पे अगर रिजर्वॉयर दिया रहता तो मोस्ट चांसेस थे कि सभी बच्चे ठीक कर देते, क्योंकि थोड़ा इधर रिजर्वॉयर के बारे में धोलावीरा में ही बात की गई है, बट यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर लिखा है। तो आप थोड़ा सा जब रॉक कट रिजर्वॉयर पढ़ा है तो उसमें ये फर्स्ट टर्म याद रख लीजिए। सॉरी, रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट रिजर्वॉयर। तो धोलावीरा में हमें क्या मिला? ग्रेट बाथ। ये हमें मोहनजोदारो में मिला है ना। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। धोलावीरा में भी ग्रेट बाथ मिला है और रॉक कट रिजर्वॉयर मिला है। क्वेश्चन नंबर 72, धोलावीरा is located गुजरात में लोकेटेड है। Where is it in Gujarat? 73, which Harappan city is divided into 3 parts? धोलावीरा, ये याद कर लीजिए। divided into 3 parts. धोलावीरा is the town was rectangular shape and divided in 3 parts. Central, lower, पहले lower and upper में है mostly जो citadel and lower part पढ़ा होगा आपने। citadel and lower town plan, lower town पूरा मोस्टली जो है टाउन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन की वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट दिस धोलावीरा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, सो व्हिच लोकेशन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? धोलावीरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेमिनेंट्स ऑफ द टाउनशिप 3 टाउनशिप, अभी मैंने बताया 3 टाउनशिप अभी याद करा है। धोलावीरा वेयर 3 टाउनशिप कहाँ मिला? धोलावीरा में। एक्सेप्शन, जो चीज एक्सेप्शनल होती है ना उससे क्वेश्चन आते हैं। धोलावीरा इज एक्सेप्शनल केस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन? अब आप बोलोगे कि थोड़ा समझाया नहीं कि ठीक है, बाकी किटाडल और लोअर टाउन प्लानिंग लोअर सिटी में डिवाइडेड है, तो धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर, मिडल एंड लोअर। ओके, अपर थोड़ा और हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, मिडल उससे कम और लोअर दोनों से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग? देखिए अभी बताया, वाटर हार्वेस्टिंग, रॉक कट रिजर्वॉयर, रॉक कट आर्किटेक्चर, और फिर वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट बाय ये डैम्स वगैरह, ये सब धोलावीरा में गुजरात। आँख बंद करके हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट है कि पानी से रिलेटेड जो भी आ रहा है ना, ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ये धोलावीरा में मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग yielded evidence of double burial? Evidence of three double burial have been found from the Lothal, which it was the important port of Harappan. देखिए, evidence of double burial also has been found from Kalibungam, Rakhiwari. तीन जगह के नाम याद करने हैं जहाँ पे डबल बुरियल मिला है। लोथल, कालीबंगम
and Rakhigarhi. Evidence of Lothal, Kalibangan, Rakhigarhi. Question number 78. Recently from excavation of Harappan sites, Sanoli. What क्या मिला वहाँ पे? सनौली ये यूपी में कहीं मिली आई थिंक. हाँ राइट, सनौली यूपी में पड़ता है. ये बागपत डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 125 ग्रेव्स मिली और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है. कहीं समझाया था मैंने. मोस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड प्राइमरी मेंबर. ठीक है, तो सनौली में जो रिसेंटली उस टाइम की न्यूज़ रही होगी उसके हिसाब से पूछ लिया. ह्यूमन बॉडीज मिला वहाँ पे. In which state of India is Harappan civilization? मंडी. कहाँ है? ये है यूपी में. Where is it? यूपी. For clothing, cotton. देखो जो कॉटन जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया ना वो इंडिया में किया गया. कॉटन was first introduced in India. याद रखना. Next, which of the following characterize people of Indus civilization? They possessed great places and temples. देखो temples थे नहीं civilization में, जगह थे. They worshipped both women and women side. They employed horse भी नहीं थे उस टाइम पे. ठीक है, just option 2 is correct. Okay, next. Indus civilization, it was regarding the Indus Valley civilization. Consider the following statement. It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present but didn't dominate the scene. During this period, cotton was used for manufacturing textile in India. So, option C. Secular civilization थी Indus Valley civilization. As such, कुछ था ही नहीं. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को सेक्युलर सिविलाइजेशन बोला जाता है. बट अगर हम वैदिक की बात करें, दैट वाज नॉट सेक्युलर सिविलाइजेशन. कॉटन वाज द फर्स्ट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकली. नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस. देखो ये मोहनजोदारो से मिली थी. जो बुल सील है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये काम मोहनजोदारो से पशुपति जिससे ये वेरी पोस्चर में बैठे हुए हम. तो इन सब चीजों से पता चला कि दे यूज्ड टू वर्शिप. मे बी दे बिलीव इन लॉर्ड शिवा, नॉट एनी अदर. द शेप ऑफ फिश ट्री इज फाउंड इन द सी फॉर्म. देखो जो एक सील पे ना एक वो बना है, ट्री बना है. तो ये पूछा है कि किस चीज का पेड़ है. वो पीपल का पेड़ है. ठीक. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हॉर्स. नहीं, शुरू में बता देता मैंने. काऊ नहीं है, हॉर्स नहीं है, लायन नहीं है, टाइगर है. नेक्स्ट, remains of which animal has not been discovered in the Indus Valley civilization? लायन. देखो फिर से कहीं ना लायन नहीं है. नेक्स्ट, which one of the following animal was not known to the people of Indus Valley civilization? देखिए ये मिला है. was not known. horse नहीं मिला है. ठीक है, ऑप्शन डी दिया है बट ऑप्शन डी करेक्ट है. According to the reports of IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of Indus Valley civilization? देखो तो extinct of the civilization extinct हुआ जैसे, तो उस ये रीजन बताया गया कि climate was the reason, but exact जो बताया IIT Kharagpur में बताया कि 900 years तक there was a continuous drought, मतलब सूखा पड़ा था. इस वजह से वो civilization extinct हो गई. Next question. A horn deity engraved on the terracotta has been recovered from. कहाँ से रिकवर की गई? कालीबंगम. Horn deity engraved on terracotta has been recovered from कालीबंगम. series of far altar. कालीबंगम में एक चीज और मिली थी, फार अल्ताफ और मिली थी सीरीज ऑफ. Horn grave deity engraved on the terracotta cake has been recovered from the Kalibangam. कहाँ से? कालीबंगम से. ओके. Horn grave. So the horn deity
टेराकोटा की से बनी हुई। ये कहाँ से मिली? कालीबंगन से मिली, ठीक है, इसको याद रखना है। काय अभी जस्ट अभी मैंने बताया था फायर से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नील? ये इजिप्ट से है तो ऑप्शन होगा डी, इजिप्ट सिविलाइजेशन, रिवर नाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, इसको छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम वाज सुमेरियन। ऑप्शन सी। Okay, now we end the session here. We will connect in the next session with the Vedic age.